Today's topic is knapsack again. So we will start the knapsack problem, and actually we are discussing about the greedy algorithm. So this is the part of the greedy algorithm. Knapsack algorithm you can say, knapsack problem you can say. So that is the knapsack problem. That is the base of greedy algorithm. Greedy algorithm. Okay, so that is, I just want to clear you only the knapsack problem, only the fractional knapsack. There are two type of knapsack, that is the fractional and the zero one. तो fractional knapsack, knapsack को KS से लिखूंगा, that is the knapsack problem. KP भी बोल सकता हूँ, KS बोल दे रहा हूँ. knapsack, knapsack problem is fractional knapsack, and second type is the zero one knapsack. Zero one knapsack. Okay, so we will apply the greedy algorithm only the fractional knapsack. We will solve the zero one knapsack problem with the help of the dynamic programming. So remember this, for this zero one knapsack we will use the dynamic programming. So that is the different concept. First we will go for the greedy algorithms. Okay, so how we can create, or already you have seen some terminology. So one by one we will see the terminology for the knapsack problem. So first is problem statement. What is the problem? So first we will see the problem statement. So some particular language is there, so we can say given a knapsack. Knapsack means you can understand some bag. Okay, knapsack means bag. Okay, so you can say given a knapsack with a capacity of m, with a capacity of m. Okay, so visually you can understand this is your bag and the capacity of this bag is m. Okay, here I am writing given n objects, you can represent some oi. Okay, so if this is first object, then o1, o2, o3 like this, and this objects, and with every object objects I can write two things are associated. Associated. What are the two things so associated? First thing is you can say that is the weight of object. Weight of object. You can represent weight of objects, that is the wi. And second thing is that is the profit of the object. Profit of object. You can represent this object is pi. So we are formulating. I am giving only till now. I am giving the only the problem statement. What is the problem? So one knapsack is given to you. This is the knapsack. The capacity of the knapsack is m. So there are some objects. So objects you can say, sir, that is object 1. I can say, sir, object 2. I can say the object 3. I can say dot dot dot. You can say, sir, on objects are there. So there are two things are associated there. First is weight. So you can say, sir, weight we can represent with w, or wi. So you can represent this is wi, and profit with pi. So this is weight, this is profit. Okay, so weight you can say for this object 1, weight is w1, profit is p1. Like this you can say, sir, this is w2, p2. This is w, weight is w3, and the profit is p3, like this, wn and pn. You are with me till now? So some this is the theoretical some part, so you can understand what I am saying. Is it okay till now? You are with me? Please reply. Yes. Good. So we can say, sir,
we are formulating the problem. Now what is our objective? This is okay, given, all the part is given to you. So we want we want to maximize maximize the profit, maximize the profit that that the total the total weight of object put into knapsack 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 should be should be should be lesser or equal, or sometimes we can say that is the equal part, lesser or equals the capacity of the knapsack. So you can say directly m, capacity of the knapsack is given to you, that is the m, so equal to m. So you can write this thing like knapsack has the capacity, that's the object you can choose, the capacity of the knapsack should be less than or equal to the m. Okay, so this is your problem. So you have to choose the objects like that the profit should be maximum, or you will choose the weight according to that knapsack should be lesser or equal to the m. So we will take the objects like that, we will fill up this bag or knapsack. This is our objective. So this part is clear to you? This part is clear to you? One constraint I can say, or you can understand, knapsack problem, knapsack knapsack problem you can divide into two parts. First part you can say, sir, the fractional part is allowed. First you can say, sir, fraction of object, or you can say weight object, so ब्रैकेट में weight लिख देता हूँ, weight is allowed. What is the means of that? If this is the scenario, object 1 has the weight of 10, okay, and knapsack has the weight of 5. If this is the situation, object 1 has the weight of 10 and knapsack has the weight of 5, so you can choose only the 5 kg from here. So you can say, sir, I will take 5 kg from the 10. So what is the ratio you are taking from this 10? You can say, sir, I am taking 5 kg from the 10 kg. So you can say, sir, only the 1 by 2 of the weight I am taking, only the half of the weight object 1 has I am taking for the knapsack. Is it okay? This thing is okay to you, beta? Please reply. Please reply. Yes, sir. Yes. Good. So you can say this type because this is coming in the fraction. So that's, you can say fraction of the weight is allowed. Okay. So you can say the name of this is fractional knapsack. Fractional knapsack. Okay. Second type of thing is there. Either you can take full, either you either take complete, I am writing, either take complete. So you can say one, either take full value and or nothing, लिख दे रहा हूँ. Okay, nothing means, this means nothing means 0. Either you are selecting the object 1, you can say, if the situation is like that, this is the knapsack is of 10 kg, okay, and you have two objects. Okay, one object is 5 kg and second object has the 15 kg. So or 10 kg, you can say this. So first you are selecting the one. Means if you are selecting the object 1, so either you can take the object 1 directly full. So 5 kg is filled, 5 kg is remaining. But in this case you can't choose the second one, because with the help of this
you can't fill this, or this is the beyond of the capacity, means 15 kilo will be there and the knapsack has don't have the capacity of 15. So this may be the choice, you can fill half of the knapsack. Okay, either you will take this, you will take the, so here you are doing, first you are choosing, so value of the object 1 is 1 and object 2 is 0. In the second term you can say, if I am selecting the object 2, so you can say the value of this object is 1 and we are not selecting this object 1, so we can say this is 0. That's why the name of this type of knapsack is 01 knapsack. 01 knapsack. Okay, so choice is there, means either you will select or you will select nothing. So at the time of choosing the objects, okay, for the knapsack. So that's why we can divide the knapsack problem into two parts. First part is fractional knapsack and second part is 01 knapsack. Clear? This part is clear to you? All of you please reply. Hello. Yes. Please Yes. reply. Okay. So one thing we can take, because we are saying, sir, we will take the knapsack. We are studying about the fractional knapsack first. So we are saying, sir, this is fractional knapsack. So you can say we have to take some decision, or we have to take some value that should be the fraction value. So you can say, sir, I am selecting the xi. Some xi is the fractional value. So directly I can write here. So here I can write some xi will be there and the value of xi, how much object, so you can write this, how much quantity, how much of the you can write how much value, or you can say quantity, how much quantity of object I, of i object I, because I am choosing I here. Okay, we are putting in knapsack, into knapsack. So this part is clear. I think two or three times I have taken the, means if I have object 1, object 2 and object 3. Okay, so here I am taking the 10 kg, here the weight I am writing wi, and this is the profit pi. So I am taking 10 kg, 8 kg and the 4 kg. Okay, here I can write the object 1 has the 300 unit profit. Here I can write some unit of 200. Here I can write the unit of I can write the 50 unit only. Okay, so first I can say which amount I can take. If the capacity of this, I can write something like uh, 12. I can write 12 kg. Knapsack has the capacity of 12 kg, so the m value is 12. So you can say, sir, first I can select this total selection of this, or I can take some x value, some x value, that is 1 by 2, that may be 1 by 2, that may be 3 by 4, that may be 1 by 8, whatever the fraction I can take from the object 1, from the object 2, or from the object 3. Is it okay? If I am selecting, from the object 1, that is 5 kg, that is 5 kg I am selecting from the object 1. Okay, object from the object 1 I am selecting 5 kg. So you can say what is the fractional value? Just tell me. Just tell me, sir, I am selecting 5 kg from the 10, so I can say that the fractional value is 1 by 2. If I am selecting from the object 2, I am selecting, again I am selecting full. So you can say, sir, I am selecting 8 kg from there. So you can say, sir, the full I am selecting means x value will be, so x value will be 8 by 8, that is 1. Okay, if I am selecting the full value, always you will get the x. Is it okay? Like this you can find the fraction. Is it okay, beta? If I am not selecting anything from the third object, okay, if I am nothing means 0 kg, so what should be the fractional value? So fractional value is 0 by 4, we are selecting nothing, so that will be 0. So you can tell me the range, what should be the range of fractional value? Range कितना आया आपका? Just tell me what should be the value of xi, कहाँ से कहाँ तक vary कर रही है from this example? You can tell me.
Please reply. Hello. Anyone? What should be the range? यार हो ना? हाँ है तो. सर एक बार रिपीट कर देना सर. I am saying what should be the range of this fractional value. If I am selecting some part of this value, so there are three ways of selecting. Means either you will select nothing, means in this part I am saying I am selecting 0 kg. Here I am saying I am selecting full value. Here I am saying I am selecting some part of this value. So maybe on the basis of this, you can say, sir, either I am selecting nothing, means the x can vary from 0, sir, x can vary from 0, or maximum you can select the full, so it will vary from 0 to 1. Okay? X की value always, because I am saying fractional, that is x will vary from 0 to 1 always. The value should be 1 by 2, 3 by 4, whatever. So some fractional value will be there, but it will not go beyond the 1. Okay, so some fractional value means 2.5 will be there, 3.5 may be there, 4.5 may be there, 0.45 may be there, anything will be 49 will be there, 0.49. So some fractional value should be the part of this xi, but it will not go beyond the 1, and it will not go beyond the 0. So limiting, if you are limiting this x, so that will be the value will be between 0 to 1. Is it okay? This part Yes. is okay to you? Okay. Yes. Okay, good. Now I am telling you this part. If this part is okay, so now you just tell me. Uh, if I just want to create some formulas. Okay, because if I am getting some fractional value, so tell me weight of object we are putting into knapsack. So try to understand. You have some fractional value, you can say, sir, some fractional value I have 1 by 2, and I have weight that is 50 kg. Okay, so how much I am putting means how am I am putting into the bag. So you can say, sir, if I multiply this part means, if I multiply means, sir, wi multiply with xi. If I will do this part, so I can calculate how much I am putting into the bag. So I will say, sir, some 1 by 2 value multiply this 50 value, that is 25 kg I am putting in the bag. We have the capacity of 50, and I am taking only the fraction part 1 by 2. I just want to take the 1 by 2 of the 50, so you will multiply this. If I will say, sir, xi has the 3 by 4 value, 3 by 4 value, okay, 3 by 4, then what will be the value, sir? I will multiply this 3 by 4 into 50, whatever the value you will get, so this will be the answer. Okay, 12.5 is more जोड़ दो 37.5, this will be the value. Okay, so you can say, sir, according to xi value what I am choosing, how much fraction I am choosing from the total value, that will be the answer of what I am putting into the knapsack. So this part is clear. So the formula maybe you can create, sir, that will be wi into xi. If I have xi and if I have the total value is this 10, 8 and 4, and I just want to find out how much the fraction value. According to the fraction I will multiply this, and I will get the how much value I am putting into the knapsack. So this part is clear to you, beta? Just tell me. Yes, sir. Okay. Anyone? Yeah. Clear? Yes, sir. Good. So this part is okay, means how much part I am putting into the knapsack. Second part, what is the profit now? If I have some fraction value, so find out the profit. So find the profit. Find the profit. और यू कैन से प्रॉफिट क्या होगा, सर? इफ आई एम पुटिंग 1 by 2, तो मेरा प्रॉफिट भी तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, मैं पूरा पार्ट तो ले नहीं रहा हूँ. सो यू कैन से आई विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई दिस प्रॉफिट वैल्यू पी आई इंटू एक्स आई. So you can say, sir, this time if I am choosing 1 by 2, this time I am choosing 1 by 2 is the fraction xi value, half of this value I am choosing, so profit will be half.
means profit will be pi into xi, sir, 1/2 into 300. That will be the profit if I am choosing half of part. अब ऐसे समझ लो, अगर आपको ऐसा करना है, अगर आपको मान लो आपके पास कोई चीज़ है जिसकी जिसकी कीमत है, जिसका वेट है 10 केजी आपके पास अवेलेबल है, आपने कहा कि और 10 केजी खरीदने पे आपको फ़ायदा हो रहा है 50 रुपये का, टोटल 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है आपको। ओके, कोई चीज़ है जिसको 10 केजी खरीदने पे आपको 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ये प्रॉफिट था। आपने क्या किया कि सर मुझे 50 किलो के वो मेरे पे इतने पैसे हैं नहीं कि मैं 10 केजी खरीदता हूँ, मैं आई कैन बाई ओनली द 5 केजी। अगर आप 5 केजी खरीदोगे तो आपको फ़ायदा कितना होगा, जल्दी से बताओ। अगर 10 खरीदने पे आपको 50 का फ़ायदा हो रहा था तो 5 खरीदने पे जस्ट इसका अपो ये कितना हो गया, 1/2 रिड्यूस हो गया। मीन्स इसका आपने कितना लिया, 10 में से हाफ लिया, 10 का हाफ लिया तो आपका प्रॉफिट भी हाफ हो जाएगा। मीन्स 1/2 इंटू 50, दैट इज द 25 रुपीज़ का आपको फायदा होगा। इज इट ओके? Likewise, we can say the profit will be multiplied to the directly to the fraction. Clear? This part is clear to you, everyone? Yes, sir. Good, good, good. चलो, अगर ये क्लियर हो गया तो नाउ वी आर फॉर्मुलेटिंग द प्रॉब्लम. So I think everything is clear till now. What I am saying here, I am giving the problem statement after what is the means of fractional and the knapsack 01 knapsack, and what is the means of fraction here, and after the what is the value I am putting into the knapsack and what is the profit. Okay, so now क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. देखो, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. So we are dealing with the profit thing. We are not dealing with the weight. We are choosing the weight, but we are trying to maximize the profit. So profit का maximize करना है. So try to understand. अगर मुझे profit को maximize करना है तो मैं सभी का profit calculate कर लूँ कि if total number of objects. So total number of objects लिख दे रहा हूँ. If total number of objects is equal to n. Okay, total number of objects n मान ले. First I am taking, sir, profit मेरा कितना आएगा if I am choosing some fraction part is there. You are choosing from the object 1. इस तरीके से object 1, object 2, object 3 dot dot dot. You have the object n. You have some w1, w2 weight है सबका, w3 and wn. According to that, you have some profit P1, P2, P3 and Pn. Now you have some xi. Xi means you are choosing some value from the fraction 1, oh sorry, from the object 1, object 2, object 3. कुछ fraction आपने सबसे ले लिया और अपनी knapsack को इसमें full कर लिया. ये आप पे knapsack था, इसको full कर लिया. So what should be the profit from the 1? So you can say if I multiply this x1, x2, this is the fraction. So this is xn. You have some fractional value, means you are taking x1 fraction from the w1, x2 fraction from the w2. This is the scenario. So what is the profit from the 1? Object 1 से आपका profit कितना हो जाएगा? Profit from object 1, that will be, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है सर, P1 x1. So you will take the sir P1 x1 will be the profit. From object 2 कितना हो जाएगा सर? That will be P2 x2. सर अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं n ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट n तक मेरा क्या होगा, सभी को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा सर, तो Pn xn सर, xn हो जाएगा. If I will add all these, if I will add all these means P1 x1, P2 x2, P3 x3 सबको ऐड कर रहा हूँ, तो you can say sir the total I can write like this, sir, summation of Pi xi, and I will start from 1 to n. So ये आप सब लोग समझते हैं ये कैसे लिखा हुआ है? Is it okay? ये इसका समेशन लिखा हुआ है, ठीक है, एडिंग ऑल दिस वैल्यू, एडिंग ऑल द वैल्यूज. इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. प्लीज रिप्लाई. Yes, sir.
ओके वेरी गुड। इफ दिस इज योर मीन्स टोटल समेशन, और मुझे करना क्या है सर, अभी मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि सर जो भी प्रॉफिट आए, अब आपने क्या किया, कुछ कुछ वैल्यू हर एक में से ले ली, इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से, इसके अकॉर्डिंग आपने निकाल लिया कि पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं तो कितना प्रॉफिट है, दूसरे को करता हूं तो कितना है, तीसरे को करता हूं तो कितना है सर, अकॉर्डिंग टू दैट टोटल प्रॉफिट विल बी दिस। ओके, नाउ यू कैन से इफ आई कैन मैक्सिमाइज दिस सर, maximize maximize this value sir, so I will get the maximum profit. Is it okay? So profit will be maximum, so profit will be max if I will maximize this function. और यही हमारा ऑब्जेक्ट था, यही हमारा ऑब्जेक्ट था ना, यस और नो, प्लीज रिप्लाई। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था ना, सो दिस इज Yes, sir. या वेरी गुड, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सो ये वाली डेफिनेशन मैंने पढ़ाई थी पिछली बार लास्ट टाइम। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, नॉर्मल प्रॉब्लम आपको दी गई थी, यू आर क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम एज ए मैथमेटिकल मॉडल नाउ. So already I have told you, when we will solving the greedy algorithm, most of the time there are two type of problem, decision problem, and after that you will go for the optimization problem. So this type of problem we will see, that is the optimization problem. Okay, so what is the optimization function sir? Pi into xi is the objective function, and we have to maximize this. So first you can write sir, the objective function, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो वर्ड तो क्लियर है ना, मैंने वर्ड आपको इसीलिए पहले पढ़ाए थे, जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा इसीलिए मैंने टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी आपको। मीन्स मैक्सिमाइज द समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, दैट इज आई इज इक्वल टू 1 to n। ओके सर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मेरा निकल आया है, इज इट ओके? बट सर व्हेन वी आर टॉकिंग when we are talking about the objective function, then we have to tell the constraints. ओके, कंस्ट्रेंट टर्म भी आपको समझाए थे। कंस्ट्रेंट कितने टाइप के होते हैं बेटा? कंस्ट्रेंट आपके दो टाइप के थे, कौन कौन से थे, कोई बताएगा? जल्दी से बताओ, कोई बताएगा कंस्ट्रेंट आपके कितने टाइप के थे? कोई नहीं बताएगा। implicit and explicit. So we have to add this constraint also in this objective function, then my problem will be full. So एक चीज आपने देख ली थी, this knapsack has the capacity of m। आपने अभी कहा सर ये knapsack का जो कैपेसिटी है या बैग की जो कैपेसिटी है, that should be equal to the m सर। ओके, अगर ये m के इक्वल है तो आप क्या कह सकते हो? इस बार मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैंने W1 से x1 फ्रैक्शन लिया, W2 से x2 फ्रैक्शन लिया, W3 से x3 फ्रैक्शन लिया, और मैंने अभी आपको सिखाया कि कितना आप अमाउंट डाल रहे हो बैग में, ये वैल्यू निकल के आती है आपकी WI मीन्स अगर आपने ऑब्जेक्ट 1 से कितना अमाउंट लिया है सर, W1 x1 डाला है मैंने बैग में, ठीक है, x1, दिस इज W1 x1। सर ऑब्जेक्ट 2 से मैंने कितना डाला है सर, W2 x2। सर ऑब्जेक्ट 3 से मैंने कितना डाला है सर, W3 x3 डाला है बैग में। इसी तरीके से n टर्म थे, अगर n आपके पास ऑब्जेक्ट है, देन यू विल से सर आई एम पुटिंग wn xn फ्रॉम द wxn वैल्यू, wn xn total value I am putting, this total value I am putting into this knapsack that has the capacity of m. So in सब all the value I will summation. Okay, so I will summation this all value, this value should be equal to or less than m. Is it okay? यही हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट था कि हमारे बैग की वैल्यू जो है ना वो इस m से कैपेसिटी से ऊपर ना निकल जाए। तो मैंने बैग को भरना स्टार्ट किया, ये वैल्यू डाला, ये वैल्यू डाला, ये वैल्यू डाला, ये वैल्यू डाला, आफ्टर दैट द ऑल दीज वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन द m. this thing by that is the constraint for first thing. Is it okay? क्लियर है बेटा ये पार्ट? प्लीज रिप्लाई यस और नो। Yes. बता तो दो यार, नहीं तो फिर समझाऊं। क्लियर है? Sir, Yes? could you please repeat it again? ओके ओके, नाउ आई एम रिपीटिंग, नो प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ, देखो प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि हाउ मच वैल्यू आई एम पुटिंग इन द बैग। ओके, ये मैंने पहले कैलकुलेट किया। अब आपके पास ऑब्जेक्टिव 1 था, ऑब्जेक्ट 1 था, तो ऑब्जेक्ट 1 से मैंने क्या कहा कि मेरे पास फ्रैक्शन x1 है और मेरे पास टोटल जो वैल्यू है वेट की वो आपकी w है, या फिर इस तरीके से समझो,
आपके पास फ्रैक्शन कितना है, मैं पहले बैग से हाफ डालना चाहता हूँ, हाफ वैल्यू को, और आपके पास टोटल जो वेट था ऑब्जेक्ट का वो 10 kg है, तो आप कितना वेट डाल रहे हो बैग में इसमें कितना वेट डाल रहे हो? तो आप कहोगे सर मैं 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 kg आई एम पुटिंग इन दिस, 5 kg मैंने ऑब्जेक्टिव 1 से डाल दिया तो मेरा इतना बैग भर गया। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन वाले पार्ट को वेट से मल्टीप्लाई करके इस बैग में डालना स्टार्ट करता हूँ। सेकंड, आपके पास ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 का मान लो वेट है 6 kg, और आप कह रहे हो सर इसका 1/3 पार्ट, जो x की वैल्यू है 1/3 मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो टोटल वेट कितना यूज़ कर रहे हो सर? 1/3 इंटू 6, मैं 2 kg डाल रहा हूँ सेकंड से, 2 kg यहाँ से डाल दिया। इस तरीके से इस बैग को भरना आपने स्टार्ट किया। आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, तो n ऑब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आप लोग पुट करोगे, और कब तक पुट कर सकते हो ये वैल्यू तभी तक तो पुट कर सकते हो कि जब तक इसकी कैपेसिटी मान लो 100 kg है, तो ये 100 kg आपका भर जाए, यहाँ तक ही तो भर सकते हो, या फिर 100 kg से कम हो जाए। ठीक है, दो ही हो सकता है कि टोटल वेट आप फ्रैक्शन डाल रहे हैं वो 96 kg तक आपने भर लिया, ठीक है, लेकिन 100 से ऊपर 101 और 102 तो नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? यहीं तक तो कर सकते हो, 100 kg तक आप भर सकते हो इस बैग को। क्लियर? तो वही पार्ट मैं बोल रहा हूँ कि आपका कंस्टेंट कैसे बना रहा हूँ। देखो, अगर मेरे पास कैपेसिटी m है और मैं बैग को भर रहा हूँ W1 x1 W2 x2 W3 x3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दैट इज ओके, दिस विल बी सब्जेक्टेड टू, और कंस्टेंट अलग दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, और सच दैट भी लिखते हैं समटाइम। सब्जेक्ट टू मीन्स मेरे बैग की कैपेसिटी कितनी हो जाए? m हो जाए, और मैं भर किससे रहा हूँ? मैं भर रहा हूँ W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 डॉट 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 WN xN। टोटल मैं इतने इस वैल्यू से बैग को भर रहा हूँ, ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए m वैल्यू को, मीन्स या तो इससे कम रहे या इसके लास्टली इक्वल हो जाए। तो दिस इज माई फर्स्ट कंस्ट्रेंट। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ WI XI summation of, sorry, I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n, that should be less than equal to n। ओके, ये मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट हो गया। कोई मुझे बताएगा ये कंस्ट्रेंट कौन सा है, इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? दिस इज योर इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट। ओके, नाउ दूसरा कंस्टेंट क्या हो सकता है सर, जो आपके इनपुट से एसोसिएटेड हो। इनपुट से एसोसिएटेड क्या है सर? जो अभी निकाला था कि हमारे जो फ्रैक्शन की वैल्यू है एक्स आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए सर? एक्स आई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। इज इट ओके? ये मेरे पास होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? हेलो? Yes. ओके, Yes, sir. this will define the boundary, so we can say this is the explicit कंस्ट्रेंट। ओके, और एक कंस्ट्रेंट मेरे पास हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो आपने W1 आप चूज कर रहे हो, देखो फ्रैक्शन तो तभी ले सकते हो इस m को भरने के लिए कि ये एक कंस्ट्रेंट ले सकते हो कि W1 प्लस W2 प्लस W3 डॉट 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 WN की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन ऑफ m, इसका समीशन आपका ग्रेटर देन m होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस बैग को पूरा भर सकते हैं, आइदर आप बैग को पूरा भर ही नहीं पाओगे। ओके, तो वी कैन टेक दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, सो वी कैन फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम, greedy problem, mathematically into this part, means these are the constraints, okay, these are the objective function। अब implicit और explicit में आप डिवाइड ना करना चाहो तो that is okay, so you can understand। मीन्स व्हाट इज हैपनिंग सर, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और ये कुछ आपके कंस्टेंट दिए, इनके बीच में ही हमको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। दिस इज माय प्रॉब्लम। इज इट ओके? सो एवरीवन इज ओके विद दिस थिंग? हाउ कैन वी क्रिएट ए प्रॉब्लम? क्लियर हो बेटा? जल्दी से Yes. बताओ। हाँ क्लियर है? जी। ओके, गुड 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 गुड। चलो, तो थोड़ा सा एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा। अगर देखो, एक चीज़ समझने की कोशिश करना, एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी, सॉल्यूशन स्पेस। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना, ना इसके पीछे पढ़ना,
बट ट्राई टू मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, यू हैव एन ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब मुझे बताओ, अगर मैं x की वैल्यू लेना स्टार्ट करूं, x की वैल्यू आपकी कहां तक x1 में x की वैल्यू कहां से कहां तक, कितनी वैल्यू ले सकते हो आप लोग? आप ले सकते हो सर x की वैल्यू 0 से 1 तक मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। तो x1 को मैं कहां से कहां तक सेलेक्ट कर सकता हूं सर? 0 से 1 के बीच में। और 0 से 1 के बीच में कितनी वैल्यू हो सकती है, कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है? हाउ मेनी वैल्यू means how many value can be taken for this purpose? कितनी वैल्यू को ले सकता हूं? कैन बी टेकन, आप कह सकते हो सर x1 की मैं 0.1 वैल्यू ले सकता हूं सर, x1 की 0.1 भी ले सकता हूं सर, 1/2 भी ले सकता हूं सर, 0.005 भी ले सकता हूं सर, मैं 0.95 भी ले सकता हूं, 0.095 भी ले सकता हूं, एनी वैल्यू। सो इस टाइप से कितनी वैल्यू आप ले सकते हो? अगर मैं कहूँ कि x1 के लिए आपको वैल्यू चूज करनी है, तो हाउ मेनी वैल्यू विल बी देयर? एनीवन कैन टेल मी कितने कितने? और ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता हूँ, हाउ मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल बिटवीन 0 to 1 x1 के लिए? अगर आंसर कर रहे हो तो जस्ट टेल मी कितना हो सकता है? 0.99 कितना बेटा? सिर्फ 0.99 हो सकता है। हाँ 0.9 हो सकता है। नहीं, आई एम आस्किंग हाउ मेनी वैल्यूज यू कैन टेक। 0 से 1 के बीच में टोटल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं? मैं पूछ रहा हूँ, ये वैल्यू काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितनी वैल्यू इस तरीके से हो सकती है? क्या प्लीज रिप्लाई, ये तो समझ में आना चाहिए। यहाँ से आपको दिख रहा है कि यू कैन टेक द इनफाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल। 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू यू कैन टेक, इज इट ओके? इनफाइनाइट वैल्यू आप ले सकते हो, नहीं Yes, कोई sir. भी वैल्यू आप ले लोगे, आपको स्टार्ट कर लोगे 0.0, आपको 0 से बड़ा चाहिए ना, 0.0000001, ठीक है, ये भी तो 0.0 से बड़ा है, ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर इनफाइनाइट वैल्यू यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम 0 to 1 फॉर द x। इज इट ओके नाउ? हेलो, Yes, sir. ओके गुड। सो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ x2 के लिए कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, तो अगेन यू विल से सर इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन स्पेस में क्या फाइंड आउट करते थे कि टोटल सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। इसी तरीके से x3 के लिए सर टोटल सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं सर? इनफाइनाइट। और मैं xn की बात करूं सर, xn पे भी आप कह सकते हो कि अगर n ऑब्जेक्ट पे आओगे वहां पे भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल, सॉल्यूशंस पॉसिबल। ओके, सो फॉर एवरी इंस्टेंट यू हैव द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर अगर मैं देखूं इसको कि x1 के लिए इनफाइनाइट, x2 के लिए इनफाइनाइट, x3 के लिए इनफाइनाइट, इस तरीके से आप कहाँ तक जाओगे सर? xn के लिए इनफाइनाइट हो जाएंगे ये। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं देखूं टोटल आपका जो सॉल्यूशन स्पेस है वो कितना हो जाएगा सर? इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पाइप की पावर इनफाइनाइट। तो ये समझ लीजिए दैट इज द हेल। ऐसा हमारा अगर कोई सिचुएशन हो रही है, सॉल्यूशन स्पेस जनरेट हो रहा है, तो दैट इज नथिंग मीन्स दिस इज लाइक ए हेल, कि आप कब तक काम कर रहे हो, कौन सी वैल्यू लेना है आपको पता ही नहीं है, और इतने में वैल्यू सर्च कर रहे हो। इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट में आप लोग वैल्यू सर्च करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाए। ओके, दिस सिचुएशन इज लाइक हेल। अच्छा, यहीं पे एक और हम करते हैं। अगर मैं 0 1 नैपसैक में सोचने की कोशिश करना, 0 1 नैपसैक में लेता हूँ, तो x1 के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं? या तो ऑब्जेक्ट को लोगे 0, या ऑब्जेक्ट को नहीं लोगे 0, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे तो 2। ओनली 2 वैल्यू इज पॉसिबल फॉर द x, कि 2 फ्रैक्शन हो सकते हैं, या तो वैल्यू को लोगे या वैल्यू को नहीं लोगे। इज इट ओके? दो ही पॉसिबल सॉल्यूशन है बेटा, यस और नो? जल्दी से बताओ। Yes, sir. Yes. ओके, सेम x2 के लिए भी आपके पास क्या है? 2। x3 के लिए भी आपके पास क्या है? 2। इस तरीके से xn के लिए भी आपके पास क्या हो जाएगा? 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल है। ओके, ये ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जब आप इसकी सॉल्यूशन स्पेस को देखोगे, सॉल्यूशन जो स्पेस आएगा यहाँ पे आपका जनरेट होके आएगा 2 की पावर n, मीन्स आपके पास 2 की पावर n टाइप की कुछ चीज़ है। ये सॉल्यूशन स्पेस आपके पास हो जाएगा जब नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे।
तो थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है इसका, अभी बहुत कुछ मत समझना, ठीक है। ये अगर नहीं समझ आता है नहीं कोई बात नहीं है, जस्ट आई एम टेकिंग कि आपको यहाँ से सॉल्यूशन को सेलेक्ट करने की कोशिश करनी है। दैट्स वाई इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में हम लोग ग्रीडी अप्रोच को अप्लाई करते हैं कि इतना बड़े में से हम लोग सेलेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो वी विल गो फॉर द ग्रीडी एल्गोरिदम्स। ओके, अब ग्रीडी एल्गोरिदम्स में मैंने आपको बताया है कि यू हैव सम स्टेप्स, वहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। पिछली बार आपको मैंने पढ़ाया था और एक एग्जाम्पल भी लिया था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं एक एल्गोरिदम शो करना चाहता हूँ कि हाउ कैन बी डील विद द एल्गोरिदम्स। और आपको मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, शायद याद होगा आपको। ये एग्जाम्पल याद है कि मैंने एक पढ़ाया था या फिर दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा? मुझे बताओ कि मैंने ऑब्जेक्ट लिए थे 3। जस्ट रिप्लाई कि आई हैव टेकिन ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 और सम वेट लिया था कुछ, याद अगर है 18, 15 एंड 10, और यहाँ पे 25 प्रॉफिट लिया था, ये वेट था आपका और ये कैसे याद प्रॉफिट है? याद है। गुड। तो कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन लिया था 24 एंड 15, और नैपसैक की जो कैपेसिटी वहाँ सी बोला था, अब एम बोल रहा हूँ। इस नैपसैक की जो कैपेसिटी थी दैट इज द 20। ओके, कैपेसिटी इज 20, तो एम इज इक्वल टू 20 लिया था। ये एक क्वेश्चन लिया था। तीनों टाइप से हमने सॉल्व किया था। फर्स्ट हमने लिया था ग्रीडी अबाउट वेट, ग्रीडी अबाउट प्रॉफिट, एंड लास्ट हमने देखा था ग्रीडी अबाउट वेट बाई प्रॉफिट। तो हमने वेट बाई प्रॉफिट फाइंड आउट किया था, एंड आफ्टर दैट वी जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज देखा था कि कहाँ हमारा मैक्स निकल के आता है। तो वेट बाई प्रॉफिट में हमारा मैक्स निकल के आया था। ये हमने क्वेश्चन किया है, सब लोगों को याद है? यस सर नो? Yes, sir. गुड गुड गुड। चलो, तो अगर ये याद है आपको तो ये आपकी नैपसैक प्रॉब्लम थी, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम थी। कैसे क्रिएट करते हैं नैपसैक प्रॉब्लम, अब आपको फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब आप रिलेट कर पाना इस चीज़ को। वहाँ मैंने शॉर्टकट में पहले आपको सिखा दिया था, उसके बाद मैंने, क्योंकि पी आई एक्स आई अगर मैं नॉर्मल यूज़ करता तो शायद आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती। नाउ यू कैन रिलेट दिस थिंग और समझ सकते हो कि किस तरीके से कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है ये चीज़ें? चलो, तो एक चीज़ मैं आपको कोशिश करता हूँ कि सिखा पाऊँ इस चीज़ को। अगर मैं एल्गोरिदम्स की इसकी बात करूँ, नैपसैक का देखो एल्गोरिदम क्या हो सकता है, तो आप लोग मुझे साथ के साथ बताना। अगर नैपसैक, फ्रैक्शनल नैपसैक के बारे में अगर मैं लिखूँ, फ्रैक्शनल नैपसैक, तो हो क्या रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने क्या किया सर मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में समझते हैं। सर मैंने क्या किया था, ग्रीडी एल्गोरिदम में क्या निकाल लिया था सर, वेट बाई प्रॉफिट निकाला था, वेट बाई प्रॉफिट। तो सर यहाँ पे आपका क्या आया था, वेट 18 था सर, 25 था, ये कुछ वैल्यू जनरेट होके आएगी सर, 15/24 ये जनरेट होके आएगा। वेट अपॉन प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, ये सर 10/15 ये आ जाएगा, 2/3 कुछ वैल्यू जनरेट होके आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यू जनरेट होके आ गई सर। अब यहाँ पे वेट बाई प्रॉफिट के अकॉर्डिंग में ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहा था, शॉर्ट कर रहा था। वेट बाई प्रॉफिट के यहाँ पे वैल्यू कोई बताएगा मुझे कितना आएगा, ये कितना कितना वैल्यू आया था लास्ट टाइम, 1.38 कितना था, किसी को याद है बेटा? 1.38 ही है, हाँ 1.38 आएगा। ये आएगा आपका 1.6, और ये आपका आएगा कितना आएगा बेटा, 1.5। ओके 1.5, ठीक है। जल्दी से बताओ, ठीक है? उल्टा हो गया, ये 1.5 कैसे आएगा? वेट बाई प्रॉफिट 1 point. उल्टा उल्टा लिखा था मैंने, प्रॉफिट बाई वेट लिखना था क्या, प्रॉफिट बाई वेट लिखना था, सॉरी। ये मैं वेट बाई प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बाई वेट लिख रहा हूँ, प्रॉफिट बाई वेट। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। ये उस टाइम भी गलत लिख गया हूँ, वेट बाई प्रॉफिट ये याद रख लेना, 25/18, 24/15 एंड 15/10। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट दिस वैल्यू। नाउ आपको क्या करना है सर, अब मुझे कैसे चूज करना था सर, जो सबसे बड़ा होगा तो हमने सबसे पहले चूज किया था सेकंड ऑब्जेक्ट को। तो मीन्स हम लोग कर क्या रहे हैं सर, हम लोग शॉर्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं सर, शॉर्टिंग कर रहे हैं। जो भी हमारा वेट आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं O2 को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है सर, उसके बाद O1 को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद आपका, सॉरी, उसके बाद O3 को सेलेक्ट करूंगा सर,
then I will select O1, means we are doing some sorting according to this value. ये समझ आया? ये समझ आया बेटा? Is it okay? हेलो, जल्दी से बताओ। Yes, यस sir. ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है, अभी तक आप लोग शॉर्टिंग कैसे करते थे? एरे में आपके पास कुछ वैल्यूज होते थे, ठीक है, आप शॉर्ट कर देते थे। लेकिन अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। चलो अगर मैं आपको एरे बना के दिखाऊं तो कुछ सिचुएशन इस तरीके से है। देखो, आपके पास एक एरे के, मान लो ये पहला ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, इसमें दो वैल्यू है, एक आपके पास है प्रॉफिट, एक आपके पास है वेट। ओके, यहाँ पे भी आपके पास क्या है? सेकंड ऑब्जेक्ट में सर प्रॉफिट है, एक में सर वेट है। यहाँ पे भी सर प्रॉफिट है और आपके पास सर वेट है। अब समझने की कोशिश करना, सर नॉर्मल होता था तो एक वैल्यू होती थी, सर यहाँ 4 होगा या 5 होगा या 2 होगा या 6 होगा या 7 होगा। इसको सॉर्ट करना था, हम कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाते थे सर, और अकॉर्डिंग टू वन वैल्यू हम लोग उनको सॉर्ट कर लेते थे सर। 2 जो भी आएगा, 2 4 5 6 7 सर सॉर्ट हो जाता था। बट सर यहाँ पे तो सिचुएशन इस टाइप की है सर, एक जगह आप लिख रहे हो 25 और यहाँ लिख दोगे 18, एक जगह लिख दोगे 24, इस जगह लिख दोगे 9, यहाँ पे लिख दोगे 1, जो भी है 5 और यहाँ पे 10 लिख दोगे सर। कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है हमारे पास, ठीक है। इस सिचुएशन में दो वैल्यू को कैसे चेक करें, और कंपैरिजन के लिए सर मैं दो वैल्यू को एक साथ लेता हूँ। तो सर पहले तो मुझे अगर दो वैल्यू किसी में डालनी है, किसी भी एरे में अगर एक एलिमेंट में दो वैल्यू डालनी होती है, तो मुझे यूज़र डिफाइन एरे बनाना पड़ेगा, या कह सकते हो कि आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है ना स्ट्रक्चर? यस और नो? जल्दी से बोलो। हेलो, स्ट्रक्चर पढ़ रखे हैं सी में या C++ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes. स्ट्रक्ट नोट जो बनाते थे वही वही चीज़ है। तो मैं सबसे पहले क्या क्रिएट करूंगा सर, मैं स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लूंगा। स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए मेरे पास दो एट्रीब्यूट है सर, प्रॉफिट है और वेट है। तो मैं अगर नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में लिखूं तो मैं क्या कह सकता हूं सर, स्ट्रक्ट, मैं एक आइटम नाम से देता हूं, स्ट्रक्ट आइटम। ये यूज़र डिफाइन बना लिया मैंने, डेटा टाइप मैंने बना लिया। इस डेटा टाइप में दो टाइप की वैल्यू है सर, इंट वैल्यू है मेरे पास प्रॉफिट में, और आपके पास सेकंड टाइप का क्या है सर, इंट वेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? एक में मैं डेटा टाइप बना लिया, ये टेम्पलेट होता है आपका डेटा टाइप का। इज इट ओके? क्लियर हो ना बेटा? हेलो, यहाँ पे ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ दो बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं 5 दे रखे होते, 5 कुछ चीज़ें दे रखी होती इस क्वेश्चन के अलावा, तो फिर 5 सेट कर लेता यहाँ पे अलग अलग। यहाँ इंट भी हो सकता है, अगर कैरेक्टर है कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट है तो फ्लोट भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद मैं कैसे करता हूँ सर, वॉइड मैन, जो मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, वॉइड मैन वगैरह लिख लेता। उसके बाद मैं कहता सर स्ट्रक्ट आइटम, ये तो डेटा टाइप हो गया, स्ट्रक्ट आइटम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया सर। और मैं ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ एन, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट एन नाम का मैंने एक एरे बना लिया, जिसमें दो इसी टाइप के, इसको मैं बोल देता हूँ ये ऑब्जेक्ट नाम का एक आपका एरे है, ऑब्जेक्ट नाम का एक एरे है जिसमें यूजर डिफाइन आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट और वेट को रख रहे हो। इज इट ओके? यू आर विद मी टिल नाउ? ये समझ आ गया क्या कर रहा हूँ? ये पार्ट आपको समझ आ Yes, गया sir. बेटा? क्लियर है ना? ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो अब आपको अकॉर्डिंग टू दिस सॉर्ट करना है, अकॉर्डिंग टू दिस सॉर्ट करना है। तो आप नॉर्मल कैसे कहते हो कि सर, अब ये एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, या नॉर्मल सॉर्टिंग नहीं है, यूज़र डिफाइंड सॉर्टिंग आपको करनी है। तो सी में तो सीधा फंक्शन नहीं मिलेगा, C++ में चेक करोगे अगर कुछ नॉलेज है आपको, तो C++ में यू विल गेट द सॉर्ट फंक्शन। ओके, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर मुझे सॉर्ट करना है C++ में, सॉर्ट फंक्शन का यूज़ कर लूँगा। और वहाँ पे कैसे डिफाइन करते हैं, वहाँ ऐसे डिफाइन करते हैं सॉर्ट फंक्शन को, आपका फर्स्ट जो भी एरे है उसका फर्स्ट एड्रेस प्रोवाइड कर दो। जो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका 1 है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट आपको एरे, इसका एड्रेस प्रोवाइड करना होता है, इसका एड्रेस प्रोवाइड कर दो। और आपका जो लास्ट होता है उसको प्रोवाइड कर दो। ठीक है, लास्ट का तो n-1 जीरो से मान लो स्टार्ट हो रही है इंडेक्सिंग, ये n-1 तक जाएगा। लेकिन हम लोग जो डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन में कैसे लिखते हैं इसको, नॉर्मल आप ऐसे लिखते हो कि ऑब्जेक्ट कॉमा 3, सॉर्टिंग में हम लोग तीन चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सॉर्ट के फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं कि हम लोग स्टार्ट एड्रेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं बेटा, लास्ट एड्रेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्टार्ट एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, सेकंड लास्ट एड्रेस प्रोवाइड करते हैं,
और यहाँ पे हम एक फंक्शन का नेम, इसको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन आपको पता है कि केवल 2 एलिमेंट में होता है कि ये इससे बड़ा है या छोटा है, और अगर बड़ा छोटा है तो स्वैपिंग कर दो, ये काम होता है। तो इस फंक्शन से हमें ये काम करना पड़ेगा, और ये फंक्शन अभी बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। तो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, फर्स्ट इसका एड्रेस और लास्ट का एड्रेस लेना पड़ेगा। तो लास्ट का n-1, क्योंकि एरे कहाँ तक जाएगा, तो हम लोग लिखते हैं इसको ऑब्जेक्ट प्लस n। तो फर्स्ट और लास्ट एड्रेस लिख दिया, पूरी एरे को कवर कर लिया, और एक फंक्शन बनाते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ, मान लो कंपैरिजन। कंपैरिजन नाम दे दिया अभी कि एक फंक्शन बनाएंगे कंपैरिजन। और ये कंपैरिजन नाम का फंक्शन कैसा होगा, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा देता हूँ। कंपैरिजन नाम का अगर फंक्शन आपको बनाना है तो यू कैन से सर कि एक मैं फंक्शन बना लूंगा कंपैरिजन का, तो इंट कंपैरिजन बनाया। उस कंपैरिजन में फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, सर स्ट्रक्ट आइटम, मैं 2 आइटम के बीच में हमेशा कंपेयर कर रहा हूँ। सर ये अगर ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो हमेशा क्या होगा, 2 के बीच में करूंगा तो स्ट्रक्ट आइटम ए और स्ट्रक्ट आइटम 2 मीन्स बी। और इनके बीच में सर कंपैरिजन क्या करना है, कंपैरिजन इस तरीके से करना है सर, R1 ले लेता हूँ कि R1 इज इक्वल टू ए प्रॉफिट डिवाइड बाई ए वेट, डॉट हो जाएगा यहाँ पे ए डॉट प्रॉफिट ए डॉट वेट। इसी तरीके से R2 सर बी डॉट प्रॉफिट डॉट बी डॉट वेट। और यहाँ देख सकते हो जो भी आपका यहाँ पे आएगा, अगर वैल्यू बड़ी है तो आपका डबल लिख दो यहाँ पे, डबल। ठीक है, नाउ यू कैन से सर रिटर्न क्या आएगा, इफ कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, इफ R1 इज ग्रेटर देन R2 देन रिटर्न। अदरवाइज आपको स्वैप करना हो तो स्वैप भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग बना लोगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डिफरेंट आपको एक कंपैरिजन नाम का एक आपको फंक्शन लिखना होता है। थर्ड आपका जो ये पार्ट होता है, इसके लिए यू विल क्रिएट ए फंक्शन। और यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए आपको क्या है कि 2 वैल्यू आपने दे रखी है, 2 वैल्यू को आपको कंपैरिजन करने के लिए पर्टिकुलर ये पार्ट आपने लिख दिया, इनको कंपैरिजन किया, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फाइंड दिस वैल्यू, और उसको शॉर्ट करते जाओगे कि ये पूरा पार्ट आगे जाना चाहिए या यहाँ पे स्वैप होके आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फाइंड आउट द सॉर्टिंग। तो यही नैपसैक में आपको यही पार्ट करना है कि आप अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फाइंड द दिस पार्ट, और लास्ट में आपको एक कंस्ट्रेंट लेना पड़ेगा कि आपका m वैल्यू से ज़्यादा ना हो जाए। तो जहाँ भी आपको इसके बाद एक फंक्शन और लिखना पड़ेगा कि जो आपका फंक्शन है कि w समेशन ऑफ wi xi शुड नॉट बी ग्रेटर देन ऑफ m। सॉर्टिंग के बाद एक एक वैल्यू को आप लेते जाओगे और यहाँ पे इस वैल्यू से आप लोग कंपैरिजन कर लोगे, देन यू विल फाइंड द टोटल आंसर कि आपका कितना कितना पार्ट ये लेगा, और ये मैक्सिमाइज कर देगा इस फंक्शन को। तो कुछ आपकी समझ आया कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि आपके पास यूजर डिफाइंड एरे है यहाँ पे, ओके, यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर है। यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर को कैसे शॉर्ट करना है, यू विल शॉर्ट दिस इज विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम, और यू कैन से कि शॉर्ट C++ में शॉर्ट की हेल्प से आपको यूज़ करना है। तो इस टाइप का फंक्शन आपको लेना पड़ता है, इससे आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आइडिया दिया है मैंने, इस फंक्शन के बारे में आप लोग पढ़ना कि कैसे यूज़र डिफाइंड और स्ट्रक्चर को हम लोग सॉर्ट करते हैं, तो यू कैन गेट दिस थिंग। ठीक है, तो आपको और आइडिया हो जाएगा। क्लियर हुआ थोड़ा सा पार्ट कि शॉर्टिंग एल्गोरिथम, वो नैपसैक क्या था और नैपसैक की प्रॉब्लम को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं और किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इज इट ओके? प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, तो एक सेकंड में स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। तो थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया है, इसको आपको